हमारी नई वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरन को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन चुन्नू हिरन को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। जंगल में चुन्नू हिरन का सबसे अच्छा दोस्त एक खरगोश बन गया। उसका नाम चीकू होता है। चुन्नू हिरन को जब भी प्यास लगती थी तो वो उस झील में पानी पीने जाता था। वो शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वो उस झील में पानी पीने गया तो उसने बड़ी तेजी से अपनी तरफ आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वो बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया। जग्गू ने चुन्नू हिरन से इतनी तेज भागने की वजह पूछी। चुन्नू हिरन ने उसको सारी बात बताई। जग्गू बंदर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वो एक खूनी झील है जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वो वापस नहीं आता। जग्गू बंदर कहता है, इसका मतलब वो मगरमच्छ की सभी जानवरों को खाता है जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता था, वापस नहीं आता था। अगली शाम जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को उस झील के पास ले गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पूंछ अभी भी दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि ये पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वो मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं ये तो पत्थर है। लेकिन तभी मानेंगे जब यह खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूँ। इसे सभी जानवरों को पता चल गया कि यह एक मगरमच्छ है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
remember how it made them feel. That's why it's important for your scenes to convey the intended emotions effectively. Take this scene for an example. With only a few changes, you can achieve totally different vibes. To give your scenes a joyful atmosphere, make it feel spacious and use bright color tones. You can also add props such as flowers, decorations, and pets. Try not to make the characters happy from the beginning. The scene will feel more alive if their happiness comes as a reaction to something in the scene. And for a touch of comedy, you can add something that feels out of place. Now let's try a different emotion. Increase the intensity of your character's conflict by making it take place in an enclosed space with no visible way out. Then locate the most aggressive character as if they're blocking the exit. Have that character do a lot of movement to make them appear bigger. As for the meekest character, you can enhance their feeling of stuckness by choosing actions that make them look smaller. Let's jump to the next emotion. When composing a gloomy scene, use as few characters as possible. Sadness is quite often considered a lonely feeling. Make the characters feel small by placing them in a dim environment with a lot of empty space. If the script requires your character to cry, give it some time before they shed their first tear. And when they do, show it in a close-up to make it more impactful. Finally, one last emotion to add to your toolkit. The trick to giving your scene a creepy atmosphere is to fill the background with humanoid props, such as portraits and dolls, and position them as if they are staring at your characters. Then shroud them in darkness. Shoot the establishing shot from behind a prop, as if someone is stalking the characters. Remember not to show the scare right away. Instead, build the tension slowly. Get the camera closer and closer to your characters as the tension builds up. And bam! Try these tips in your next video project and put your audience on an emotional roller coaster. बात है, बहुत दूर एक जादुई देश में रूही नाम की एक छोटी लड़की थी। रूही को नई चीज बहुत पसंद थी और वो बहुत प्यारी रहती है। एक दिन जब वो घूम रही थी तो वो एक चमकदार इंद्रधनुषी पुल देखती है और वहाँ जाती है। वहाँ पर ठोकर पुल पर गिरते ही वो दूसरी जगह पहुँच जाती है। जब वो देखती है, उसकी आंखें हैरत से फैल जाती है और वो वहां से उठकर सब जगह देखने लगती है।
वहाँ से वो आगे जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए उसको एक खरगोश दिखाई देता है। खरगोश रूही को ही देखा करता है, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। रूही जानवरों की बात समझ जाती थी। वो उस खरगोश के पास जाती है। मेरे प्यारे खरगोश, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। वो उठती है और कहती है, चलो मेरे प्यारे खरगोश, तुम्हारे परिवार को ढूंढने चलते हैं। वो दोनों वहां से चल पड़ते हैं। वो दोनों वहां से चल पड़ते हैं। जैसे ही वो जंगल में और आगे बढ़ते हैं, उनको एक तोता मिलता है। तोता खरगोश को जानता है। वो बहुत बुद्धिमान होता है। वो ऊंचे पेड़ों पर रहता था और जंगल के सारे रहस्य जानता था। वो जब रूही और खरगोश से मिलता है, तो वो दोनों बताते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो खरगोश के परिवार को ढूंढने में रूही की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वे जंगल के हर तरह के रास्ते को पार करते हुए जाते हैं। चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंचते हैं और वो लोग जैसे ही नदी के पास पहुंचते हैं, उन्हें एक कबूतर मिलता है। कबूतर के पास एक जादुई फूल होता है जो इच्छाओं को पूरा कर सकता था। वो रूही को देख समझ जाता है कि वो किस लिए आई है। रूही उसे देख के समझ जाती है कि ये जादुई फूल है जो इच्छाओं को पूरा करता है। ये कबूतर उसे ये फूल देना चाहता है जिसे वो खरगोश की मदद कर सके। रूही वो फूल उससे लेती है और मन में सोचती है कि खरगोश का परिवार उसे मिल जाए। ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।